Welcome everyone in your PK class. Now, let me tell you about your first chapter, that is National Heroes of Pakistan and their role in independence. Okay, national heroes. When you hear this word, national hero, what person come in your mind first? Can you tell me? Raise the hand. Okay, Kabir. Give me reply fast, Kabir. Yes, miss. You are asking, yes, miss. Beta, you have to give me answer of my question. I ये am आपके आवाज में अभी इतना लैग हो रहा है. Listen again, student. Listen again. Okay, Kanza, please unmute yourself. Speak, beta. Can you speak little louder? Little louder. Okay. फिर आप मुझसे ये मत कहिएगा टीचर आर एयर ड्रम विल बी ब्लास्ट. ओके, मैं चीख लूंगी, मुझे मसला नहीं. Now, tell me, can you hear me properly? Kanza, shake your head. Can you hear me properly now? Kanza, no. So Kanza, there is a problem at your side. Aras, can you hear me properly? Okay. Kissa, can you hear me properly? Okay. Zara, can you hear me properly? Okay. Kanza, at your side there is a problem. Kindly solve it. Raise your volume. Okay. Sabika, can you hear me properly? Now, students, I am repeating my question. Kindly listen carefully and raise the hand. When we are talking about national heroes, what came in your mind first? आपके माइंड में कौन सबसे पहले आता है? ओके, हसन अहमद, kindly tell me. Please, Hassan, speak. Teacher, कायदे आज़म. Very good, Hassan. Very good. Qaid Azam. Hassan said to me, Qaid Azam. Anyone else? Kabir. Kabir. Be attentive, Kabir. Anyone else? Daniel. Okay, speak, Daniel. Allama Iqbal. Very good, Allama Iqbal. Correct. Anyone else? Kissa, would you like to say something? No. Okay, Zara, speak. Speak, Zara. Wait. Sorry, repeat again. Zara, repeat again. Okay, Liaquat Ali Khan. Okay. Daniel, your turn has been came. So, who want to give me answer? Okay, Nurul Hadi. Please speak, Nurul Hadi. Allah Taala. Sorry? Allah Taala. No. अल्लाह ताला तो हमारे सुपर हीरो हैं, सही है. वो नेशनल हीरो में नहीं आ रहे. नेशनल हीरो भी पाकिस्तान के दिन वो हीरो तो है हमारे, लेकिन वो हमारे नेशनल हीरो में नहीं आ रहे. ओके, अल्लाह ताला तो हमारे गॉड हैं. अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं. ओके, नेशनल, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हीरो नूरुल हादी, जैसे कि कायदे आजम, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान. कैन एनीवन टेल मी मोर? कंजा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके, स्पीक. कायदे आज़म. कायदे आजम. ओके, कायदे आजम इज ऑल्सो राइट. ओके, लेट मी टेल यू, हम
इस चैप्टर में इन्हीं सब लोगों को डिस्कस करेंगे कि हाँ, नेशनल हीरोज हमारे कौन कौन से हैं। इन नेशनल हीरोज ने पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए कितनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए, कितने ही ज्यादा स्ट्रगल की, यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। यस कबीर, यस कबीर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। या इट इज करेक्ट, हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन करके अपने तमाम नेशनल हीरोज की बायोग्राफी पढ़ेंगे। सही है। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस ही यही होगा कि आप इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम, व्हेन he was born, when he was dead, when and where he did education, and as well as how many siblings they have. तो इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, और इस तरह आप एक बायोग्राफी सीखेंगे कि किसी पर्सनैलिटी की बायोग्राफी हम किस तरह राइट करेंगे, और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इन नेशनल हीरोज ने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे लिए फ्रीडम करने के लिए कितने ज्यादा सैक्रिफाइस किए हैं। वो सब चीजें हमें इस चैप्टर से पता चलेंगी। सही है। अब आपके साथ में एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ, काइंडली इसे आप वॉच करें। Today I am giving you a small introduction about the national heroes and their roles in the independence of Pakistan. Got it? As we know that Quaid-e-Azam, Allama Iqbal, Maulana Muhammad Ali Johar, Liaquat Ali Khan, Chaudhry Rahmat Ali, they all are national heroes. Got it? One by one we will discuss about them. But today, now I am giving you a small introduction about that. Students, please kindly pay attention over there. The Pakistan movement or Tehreek-e-Pakistan refers to the successful and historical movement against British and India. Again, you are starting Inaya Jafar. What are you doing? Inaya, I am seeing your name. Now Zoom doing a lot of for the teacher to find out the naughty students. So Inaya, I found it. You are doing that thing. So kindly be aware. Against the British and India to have an independent Muslim state named Pakistan, created from the separation of the northwestern region of the Indian subcontinent. This movement was led by Muhammad Ali Jinnah along with other prominent founding fathers of Pakistan, including Allama Iqbal, Liaquat Ali Khan, and so on. The movement ultimately achieved success in 1947 and it named Pakistan. Okay, so we are discussing right now Tehreek-e-Pakistan, movement of Pakistan. Okay, तहरीक, जब भी हम किसी चीज के लिए फाइट करने जा रहे होते हैं, जब भी हम अपने राइट्स मांगने जा रहे होते हैं, क्या हम यूनिटी में जाते हैं या हम इंडिविजुअल जाते हैं? मुझे बताइए। कैन एनीवन टेल मी? who want to give me answer? जब भी हम अपने राइट्स मांग रहे होते हैं, फाइट करने जा रहे होते हैं, क्या हम इंडिविजुअली जाते हैं या यूनाइट होकर जाते हैं? बताइए। यूनाइट मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, मिलकर इत्तेहाद के साथ जाते हैं, या सिर्फ अकेले जाते हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी फाइटिंग के लिए? कैन एनीवन टेल मी? किस्सा? प्लीज बी अटेंटिव इन योर क्लास।
कैन एनीवन टेल मी? ओके, लेट मी टेल यू। अगर हम कुछ चाहते हैं, सही है, हम आजादी चाहते हैं, हम अपने राइट्स चाहते हैं, तो हमें क्या होना पड़ता है? हमें यूनिटी में आना पड़ता है। क्योंकि आपने एक फेमस इडियम सुना होगा, फेमस फ्रेज सुना होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी इत्तेहाद में बरकत है। अगर हम सारे मिलकर कोई बात करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी, सही है। तो इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के पीपल जो सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे, जब पाकिस्तान फ्री नहीं हुआ था, जब मुस्लिम्स ने एक सेपरेट होमलैंड नहीं लिया था, तब सब कॉन्टिनेंट में रूलिंग थी ब्रिटिश की। और वो ब्रिटिश रूल किस पर करते थे? हिंदू एंड मुस्लिम्स। ओके, काइंडली लिसन केयरफुली। 3 religions: British, Hindus and Muslims. Muslims, Hindu and British. ओके, 3 तरह के लोग थे सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट, बेटा ये टर्म आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार यही चीज यूज करूंगी लेक्चर के वक्त। सब कॉन्टिनेंट। ओके, मुस्लिम्स कौन कौन रहा करते थे वहां पर? मुस्लिम्स, हिंदू एंड ब्रिटिश। गॉट इट? सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन रहा करते थे? आई एम रिपीटिंग अगेन, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ओके, रूलिंग किसकी थी वहां पर? रूल कौन करते थे? ब्रिटिश। ओके, और ब्रिटिश रूलिंग किस पर करते थे? हिंदू एंड मुस्लिम। ओके, अब आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा, अगर कोई शख्स आप पर रूलिंग कर रहा है और आप पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चरिंग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है वो आपके साथ, तो डू यू लाइक टू स्टे विद देम? काइंडली गिव मी योर आंसर। वुड यू लाइक टू स्टे विद देम? क्या आप उनके साथ रहना पसंद करेंगे? बेटा गिव मी योर रिप्लाई बाय शेकिंग योर हेड। नो। ओके, यही चीज तो हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, यही हुआ था कि ब्रिटिश लोग मुस्लिम्स और हिंदू पर बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग करते थे, उनको राइट्स नहीं देते थे कि वो नमाज पढ़ सके। मुसलमानों को क्या राइट चाहिए थे? कि वो नमाज पढ़ सकें, अपनी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, उन्हें अच्छी सी जॉब मिल सके, जो कि नहीं मिलती थी। इवन दो उनके साथ क्या करते थे? उनके साथ टॉर्चरिंग करते थे, उनको बीटिंग करते थे, उनको हिटिंग करते थे, सही है। तो क्या आप ये सब चीजें बेयर कर सकते थे? नो। फिर मुसलमानों ने एक वक्त के बाद, जब मुसलमानों से ये चीज टॉलरेट नहीं हो सकी, बेयर नहीं हो सकी, फिर मुसलमानों ने क्या सोचा? उन्होंने अपने लिए एक मूवमेंट बनाई, और उस मूवमेंट को हम उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? तहरीके पाकिस्तान, और इंग्लिश में हम कहते हैं पाकिस्तान मूवमेंट। को हमारे नेशनल हीरोज ने जो स्लेप्ट हुए थे, जो सो रहे थे, उन्हें अवोक किया, उन्हें जगाया, सही है। किस तरह जगाया? उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं थे, उस जमाने में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने किस तरह लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि यू वर स्लीपिंग, यू आर बियरिंग lots of torturing, lots of heating, beating. ओके, किस तरह किया? उन्होंने ये सब मैसेजेस थ्रू पोएम्स, थ्रू मैगजीन, इनके जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाए, मैसेज पहुंचाया कि अब हमें जागना होगा, अब हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ओके,
तो इसलिए इन सब ने मिलकर तहरीक बनाई और ब्रिटिश से जाकर अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की, सेपरेट होमलैंड की डिमांड की कि हम मुसलमानों को भी अब एक अलग से अपना स्टेट चाहिए। सही है। तो ये सब सिर्फ एक मुसलमान खड़े होकर तो नहीं कर सकते थे ना, या सिर्फ कायदे आजम खड़े हो गए कि हाँ मुझे एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। नो, इसके लिए पूरी टीम बनी, सब मुसलमानों को गैदर किया, सब मुसलमानों को एहसास दिलाया, फीलिंग्स दी कि आपके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, आप इस जुल्म को कब तक बियर करेंगे, क्योंकि जुल्म को बियर करना भी गुनाह है। अगर कहीं आपके साथ जुल्म हो रहा होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। सही है। तो फिर इन सब हमारे नेशनल हीरोज ने सब मुसलमानों को जगाया और फिर कहीं जाकर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग के बाद पाकिस्तान हमें मिला। और पाकिस्तान हमें कब मिला बेटा? 1947 को पाकिस्तान हमें मिल गया, अनाउंस हो गया। और ये बेसिकली पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ, मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड इसी वजह से मिली क्योंकि तमाम मुसलमान गैदर्ड थे, तमाम मुसलमानों ने यूनिटी दिखाई और तमाम मुसलमानों ने अपना एक ही पर्पस रखा कि हमें अपना सेपरेट होमलैंड चाहिए, जहां पर मुसलमान फ्रीली अल्लाह की इबादत कर सकें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मैसेंजर मानते रहें और साथ साथ अपने फेस्टिवल्स को इजीली सेलिब्रेट कर सकें। सही है। बेसिकली पाकिस्तान हासिल करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हमें एक ऐसी स्टेट चाहिए जहां पर हम अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल सकें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को मान सकें और तमाम वहां के रूल्स जो होंगे वो इस्लाम के मुताबिक होंगे। सो दैट इज व्हाई मुस्लिम्स गैदर and demanded for separate homeland. Got it? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज आपको मिस इकरा ने दिया है, बिकॉज ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट फॉल्ट्रम। इस चैप्टर में जो एक छोटी सी मैंने स्टोरी सुनाई कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, तो आपके साथ में कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन में केयरफुली देखिएगा। Look at the first picture. कायदे आजम एड्रेसिंग, कायदे आजम एड्रेस कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। ओके, सेकंड पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो रही है न्यूली क्रिएटेड कंट्री के लिए। ये लोग स्लोगन्स यूज कर रहे होंगे और नारे लगा रहे होंगे कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे इस तरह, और कुछ सॉर्ट ऑफ फाइटिंग नजर आ रही है। सही है। अब आप सेकंड पिक्चर देखिएगा बच्चों। जब लॉर्ड माउंटबेटन एक वॉइस रॉय थे ब्रिटिश की तरफ से, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड दिया जा रहा है, तो उसके बाद देखिए मुसलमान इस तरह एक ट्रेन में किस तरह बैठकर आए थे। सही है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ इस ट्रेन में बैठ गए तो दैट मीन्स मुसलमान इजीली अपनी जर्नी तय करते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। नो, आपको पता है जब मुसलमान ट्रेन में बैठे थे उसके बाद भी कुछ हुआ था। बहुत से सिख और हिंदू इस ट्रेन में एंटर हो गए थे और बहुत ही ज्यादा उन्होंने ब्लीडिंग की, लाइक लोगों को किल किया, शहीद किया लोगों को सफर में ही। चाहे वो सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैन को ही किया, विमेन को भी किया, साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी उन लोगों ने शहीद किया इस ट्रेन के अंदर घुसकर। आप ये देखिए, ट्रेन से ही आपको नजर आ रहा होगा कि कितने ज्यादा लोग थे और कितने होश होश हुए हुए हैं, और इसी के अंदर हिंदू लोग घुस गए थे और साथ साथ बहुत ज्यादा
तशद्दुद किया मुसलमानों के ऊपर, उन्हें जख्मी किया, उनको शहीद कर दिया। आप ये सेकंड पिक्चर देखिएगा। ये सेकंड पिक्चर तब की है जब कायदे आजम ने ऑफिशियली पाकिस्तान में एंट्री कर ली थी, तो उनका सब लोगों ने वार्म वेलकम किया। और साथ साथ आप देखें कायदे आजम के लिए उन्होंने फूल बनाए हुए हैं, और साथ साथ फिर कायदे आजम एड्रेस कर रहे हैं न्यूली बॉर्न कंट्री की नेशन के साथ। सही है। अगेन वही पिक्चर है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन। गॉट इट। These are few pictures regarding after Independence Day, how people struggle and faced a lot of problems. Got it? Now I would like to all of you unmute yourself one by one and tell me what did you understand today. Beta, you are allowed to unmute yourself one by one and speak. One by one speak. Did you understand something? Miss, I learned that in the other days it was very hard to communicate and the world can be cruel to people sometimes. Miss, I learned this in this that we do. Miss Ikra, I have learned in this video that it was hard to communicate in the back in the times, and also I have learned that the world can be very mean. Did you feel pain? Very mean. Nurul Hadi, kindly share your thinking. जो ट्रेन में जो लोग किल कर रहे थे वो लोग हिंदू थे। देखिए वो लोग किसको किल कर रहे थे? तो मुसलमानों को कर रहे थे जो कि माइग्रेट हो रहे थे सब कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान की तरफ। ओके, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने कितनी वो पूरा वो करा है और हमें पूरा पाकिस्तान आजादी मिली है। कायदे आजम ने क्या अकेले बनाए है? नहीं, ये तो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं। कायदे आजम तो फादर ऑफ पाकिस्तान है। सही है। कायदे आजम हमारी जिस तरह एक हमारा प्लांट होता है उसके लिए रूट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, कायदे आजम वो रूट है पाकिस्तान की। और उसके बाद हमारी कितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स में, देखिए आपने। तो वो सारी ब्रांचेस हमारे अदर नेशनल हीरोज से, जिसमें कौन आते हैं? लियाकत अली खान, अलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, ये सब आते हैं। सही है। कायदे आजम ने तो सिर्फ एक रूट का काम सर अंजाम दिया है, लेकिन एक प्लांट के साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी होती हैं। तो हमारे अदर नेशनल हीरोज कौन है? ब्रांचेस हैं। गॉट इट इनाया? बेटा और कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी क्लास ऑलमोस्ट खत्म है, 1 मिनट रिमेन है और देयर इज नो होमवर्क ऑफ टुडे। और as far as early as possible you have to buy your. Are there any classes after this? No, there is no class. Are there any classes after this? No, Mariam, there is no class. This is your off time. This is your chutti time. Enjoy it. Okay, Allah bye, Hafiz miss. everyone. Bye bye. Allah Hafiz.